یہ کہنا کہ ہمارا کریکولم بہت ہیوی ہے اور یہ کہنا کہ ہمارا کریکولم آلریڈی بہت لینتھی ہے اور ٹیچرز ختم نہیں کر پاتے، اس جملے کے دو حصوں کے بیچ میں گیپ ہے. کریکولم lengthy ہے، heavy ہے، I don't agree. Teachers struggle to complete it, I agree. آج اگر ایک ٹیچر اپنی جاب کو صرف جاب سمجھ رہا ہے، اس کے بیونڈ اس کی کوئی اس کے ساتھ ایفیلیشن نہیں ہے، کوئی پیشن نہیں ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ وہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی، وہ کیسے ٹیچنگ میں آگے، تو اٹ ڈپینڈز اپون دا ہول پروفائل کہ وہ کیسے بلڈ ہوا. ٹیکسٹ بک ٹو می سو فار جو میری ریئلائزیشن ہے واز اے ٹول ان کولونیلزم، جس میں مجھے بندش لگانی تھی کہ اس کے بیونڈ نہیں سوچنا، اس کے بیونڈ نہیں بولنا، اس کے بیونڈ نہیں پڑھنا، اس کے بیونڈ نہیں لکھنا. 360 ڈگری پی او وی کا لیبل کیسے ایمرج ہوا؟ وہ ایسے ہوا کہ when I was studying at PhD level تو میں کریٹیکل تھیری کو سمجھ رہی تھی، اور کریٹیکل تھیری کو سمجھتے ہوئے کریٹیکل تھنکنگ کے پروسیس کو ایز اے سائیکالوجسٹ ساتھ ساتھ سمجھتے ہوئے I realized کہ in a real world people are not always opposite to each other. How one topic, one lesson turns into a dialogue, and then it turns into a debate, right. And then it turns into something completely new جو کہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا. کیا آپ یہ بتائیں گی یا ایکسپلین کریں گی کہ پیس پیڈاگوجی کیا ہے اور یہ آپ کے کریٹیکل پیڈاگوجی کے ساتھ کیسے کنیکشن ہے؟ سیکنڈری اسکول تک آتے آتے بچوں کے ساتھ ایسا کیا ہوتا ہے that they cannot take or give opposite opinion peacefully، کیونکہ بائی دا ایج آف 14 اس نے اتنا آپریشن انٹرنلائز کر لیا ہے کہ مجھے روکا جاتا ہے، مجھے منع کیا جاتا ہے، مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہ اچھا بچہ ہے جو سوال نہیں کرتا، یہ ایک اچھا بچہ ہے جو ڈس ایگری نہیں کرتا. تو یہ اچھا بچہ کے اس میں ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے. پیس پیڈاگوجی جو ویسے دنیا میں یہ ورڈ موجود ہے اور بہت جگہوں پہ ہے، جس طرح میں نے کریٹیکل تھنکنگ میں 360 ڈگری پی او وی دیا تھا، یہاں ہے ٹراما انفارمڈ پلیس بیسڈ پیس پیڈاگوجی. دس از مائی ڈیزائن. آپ نے جن تھیوریز کی بات کی وہ بذات خود تو بہت خوبصورت نظر آ رہی ہے، سننے میں اور دیکھنے میں بھی کافی ہیلپ فل ہوں گے، لیکن جب ٹیچرز ایک کلاس روم میں دے آر رشنگ ٹو کور دیئر کورسز، یہاں پہ تو سنس آئی ورک ان دی فیلڈ ایز ویل، میں نے تو یہاں تک دیکھے کہ کریٹیکل تھنکنگ کے سوال تک نہیں ہوتے، اوپن اینڈ سوال کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹیچرز کے بیس پہ، جہاں پہ آپ اسٹوڈنٹ کے یہ بیہیویئر چینج لے کے آتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ آپ سے سوال پوچھے، اس میں اتنا ٹائم اور ایفرٹس لگ رہے ہیں. لیکن آپ کی جو تھیوریز ہے دے گو مور بیونڈ دیٹ، تو کریکولم کیسے اس چیز کی وہ اجازت دے سکتا ہے؟ میرے کچھ آرٹیکلز آپ کو ملیں گے ایک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کے ساتھ، جس میں ہم نے پیس ایلیمنٹس ان کریکولم آئیڈینٹیفائی کیا. تو پہلا کام جو ہمارا تھا وہ ایکچولی کریکولم بیسڈ تھا. آپ ان کے اوپر کوئی ٹریننگ ماڈیولس بھی ہیں، آپ ٹیچرز کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ what are those training modules؟ جو میرا پیس پیڈاگوجی کا پورا ایک اسٹرکچر ہے، اس کے 3 ٹریننگ ماڈیولس ہیں. میں فیڈرل ڈائریکٹریٹ کو منا لوں گی تو یہ ہو جائے گا؟ نہیں، مجھے فیڈرل ڈائریکٹریٹ کو نہیں بنانا، مجھے منسٹری کو بھی نہیں بنانا، مجھے کسی پاور اسٹرکچر کو نہیں بنانا. اگر آپ کو بلیفس پہ کام کرنا ہے، اگر آپ کو بلیفس اینڈ پریکٹسز پہ کام کرتے ہیں تو پریکٹیشنر کے ساتھ کام کرنا ہے. وائی فرسٹ ماڈیول از اباؤٹ دا ٹیچر. پاکستان کی یونیورسٹیز ہر سال لاکھوں گریجویٹس پروڈیوس کرتے ہیں، اور ہر سال یہ گریجویٹس ایک ایسے معاشرے میں قدم رکھتے ہیں جو فرقہ وارانہ تشدد، صوبائی محرومیوں، صنفی امتیاز اور عدم برداشت کا شکار ہیں. And thus every year we continue to blame poverty, governance and infrastructure. لیکن ہم یہ سوال نہیں پوچھتے کہ آخر کار ہم نے انہیں سکھایا کیا ہے. صرف یہ نہیں کہ کون سے مضامین پڑھائے گئے یا کون سے کتابیں نصاب کا حصہ تھیں. ہم یہ نہیں پوچھتے what did we teach them to believe about who belongs, who doesn't, about whose history matters, and about what kind of disagreement is acceptable. آج میری مہمان ایک ایسی ریسرچر ہیں جو گزشتہ 27 برسوں سے انہی سوالات پر غور کر رہی ہیں اور ان کے جوابات تلاش کرنے کے لیے علمی بنیادیں استوار کر رہی ہیں. وہ فل برائٹ پوسٹ ڈاکٹریٹ اسکالر ہیں،
PhD in ایجوکیشن ہیں اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بطور مستقل فیکلٹی ممبر خدمات انجام دے رہی ہیں. بطور ریسرچ کنسلٹنٹ ان کا کام ہائر ایجوکیشن کمیشن اور کامن ویلتھ آف لرننگ USAID اور ورلڈ بینک جیسے اداروں تک پھیلا ہوا ہے. Dr. Abshom, it's a great pleasure to have you. Welcome to the Dialogue. Thank you so much for having me. It's a pleasure to talk to such a smiling face. Thank you so much. Thank you. جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے, you have such a huge experience dealing with the curriculum issues, education policy and professional development of teachers. اس آپ کے ایکسپیرینس کے دوران وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ نے یہ محسوس کیا کہ پرابلم آئے کلاس رومز میں, and the classrooms are not only making students to fail but یہ ان کو تھوڑا بہت wrong direction کی طرف بھی لے کے جا رہے ہیں. So what was your experience about that? اوکے, جو میرا ایکسپیرئنس شروع ہوتا ہے نا, تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ 1995 میں یہ ڈیسیژن لینا کانشیسلی کہ مجھے ٹیچنگ میں ہی جانا ہے, دیٹ واز دا مومنٹ. کیونکہ اس وقت تک جو میری اپنی 16 years آف ایجوکیشن تھی, اس نے مجھے یہ بتا دیا تھا کہ آئی کوڈ ڈو اے لاٹ مور دین واٹ مائی ٹیچرز allowed me to do. ٹھیک ہے, تو وہاں پر مجھے یہ ریئلائزیشن آ چکی تھی کہ اسکولس کیا کر رہے ہیں, ٹیچرس کیا کر رہے ہیں. اینڈ وائی دس ریئلائزیشن واز دیئر مینلی بیکاز مائی مدر واز اے ٹیچر. سو I used to tell my whole day story to my mother, and unconsciously me and my mother used to reflect upon it. ٹھیک ہے, اسکول سے لے کے کالج یونیورسٹی تک جو کچھ ہو رہا تھا, اماں اور میں باتیں کر رہے تھے, اور ان باتوں میں یہ ریئلائزیشن آ رہی تھی کہ I could do a lot more, لیکن اسکول کہیں مجھے ریسٹرکٹ کر رہا ہے, یا کالج کہیں مجھے ریسٹرکٹ کر رہا ہے, یا ایز یو سیڈ کلاس روم کہیں روک رہا ہے, بجائے اس کے کہ کلاس روم میرے لیے پاتھ ویز کریٹ کرے, بجائے اس کے کہ کلاس روم میرے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کرے, یا ٹیچرز میرے لیے. تو یہ ریئلائزیشن مجھے لگتا ہے وہاں تھی. اینڈ دین آئی سیڈ ٹو مائی مدر کہ میں پہلے ایجوکیشنل سائیکالوجی پڑھوں گی اور پھر کلاس روم میں اسٹیپ ان کروں گی. سو ان 1995 آفٹر ڈوئنگ مائی BEd I opted to do masters in applied psychology. تو وہ جو ریئلائزیشن کی بات ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت سے ہی تھی اور وہیں سے موجود تھی. Right. While going through your profile, I learned that you have developed a framework which you call 360. 360 degrees POV. Critical pedagogy. ہمارے سننے کے لیے, ناظرین کے لیے, اگر آپ ہمیں یہ بریف اپ کر دیں کہ یہ ہوتا کیا ہے, اینڈ ہاؤ ڈو یو بیسیکلی ایکسپلین اٹ ان تھیوری, اینڈ اس کی پریکٹس کیسے ہوتی ہے. بالکل. 360 ڈگری POV کا لیبل کیسے ایمرج ہوا, وہ ایسے ہوا کہ when I was studying at PhD level, تو میں کریٹیکل تھیری کو سمجھ رہی تھی, اور کریٹیکل تھیری کو سمجھتے ہوئے کریٹیکل تھنکنگ کے پروسیس کو ایز اے سائیکالوجسٹ ساتھ ساتھ سمجھتے ہوئے آئی ریئلائزڈ کہ ان اے ریئل ورلڈ پیپل آر ناٹ آلویز اپوزٹ ٹو ایچ ادر. ٹھیک ہے, ان اینی کریٹیکل تھیری, چاہے وہ جینڈر بیسڈ ہو, ریسزم ہو, ریلیجس کانفلکٹس ہوں, ایتھنسٹی کی ہو, کوئی بھی کانفلکٹ, جب آپ دیکھتے ہیں ایک ریئل سچویشن میں, تو سم پیپل ہیو اے ڈفرنٹ assumption فرام یور سیلف اینڈ اے ڈفرنٹ اوپینین. وہ آپ سے تھوڑا سا کوئی 30 ڈگریز یا 45 ڈگریز کے لیول پہ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ دونوں ٹوٹل ڈس ایگریمنٹ میں. اچھا, اس میٹافور کو استعمال کرتے ہوئے when I started experimenting in classrooms کہ ہم opposite opinion یا difference of opinion کو کیسے کلاس روم میں لے کے آئیں اور اس کو اسپیس دیں, تو then I designed pedagogy جس میں around the table students take positions on one theme, and at this one theme there is one position, and then
स्टूडेंट्स डिसाइड कि मैं इससे इतना एग्री करता हूँ, इतना डिसएग्री करता हूँ, इतना एग्री करता हूँ, एंड देन देयर इज अ पॉइंट व्हेन टू स्टूडेंट्स आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर, राइट वो कंप्लीट डिसएग्रीमेंट में होते हैं। राइट अच्छा, ये करते करते फिर हमने एक, क्योंकि मैं इसको एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेक्टिव मेथड रखना चाहती थी, तो आई आस्क्ड स्टूडेंट्स टू थिंक एज इफ देयर इज अ राइट विंग एंड अ लेफ्ट विंग। yeah. ठीक है, तो जो उसके साथ हैं लोग और उसके करीब हैं उसकी सोच के, वो उसका राइट विंग है, right लेकिन वो इसका लेफ्ट विंग है, right और जो इसका राइट विंग है वो उसका लेफ्ट विंग है। तो इस तरह हमने ये 360 डिग्री पेडागोजी, यानी अराउंड अ टेबल, हाउ वन टॉपिक, वन लेसन टर्न्स इनटू अ डायलॉग, and then it turns into a debate, right and then it turns into something completely new, जो कि किताब में नहीं लिखा हुआ, लेकिन उन बच्चों ने नॉलेज कंस्ट्रक्ट किया है। Right. So that's basic idea. आई गेस यूनिवर्सिटी लेवल पे तो हमें फिर भी थोड़ा बहुत ही नजर आ जाता है, लेकिन वेयर आर यू प्रपोजिंग दिस, विद इन द कॉलेजेस और विद इन द स्कूल्स इवन? जो ये डिज़ाइन था, इसको मैंने 3 लेवल्स पे एक्सपेरिमेंट किया, जहाँ ये मुझे यूजफुल भी लगा, प्रैक्टिकल भी लगा। वन वाज सेकेंडरी स्कूल्स, देन हायर सेकेंडरी, एंड देन अंडरग्रेड लेवल। इन तीनों के ऊपर मैंने इसको बाकायदा टीचर्स के साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में भी, आई यूज्ड टू ट्रेन टीचर्स एंड देन दे यूज्ड टू इम्प्लीमेंट इट, आई यूज्ड टू ऑब्जर्व, एंड देन वी विल हैव अ रिफ्लेक्शन सेशन कि अच्छा क्या गया, कैसा गया। तो इंटरेस्टिंगली तीनों लेवल्स पे वो बहुत अच्छा रहा था, ओके बट सेकेंडरी स्कूल्स पे चैलेंज ज़्यादा था। हायर सेकेंडरी जो कॉलेज क्लासेस कहलाती हैं, FA FSC, और अंडरग्रेड इन यूनिवर्सिटीज, बिल्कुल जैसे आपने कहा, वहाँ ये डिस्कशन, ये डिबेट अप्रिशिएटेड भी है और लोग इसको कंफर्टेबली अडॉप्ट भी कर लेते हैं। सेकेंडरी स्कूल में 2 तरह की रेजिस्टेंस है, टीचर्स की तरफ से भी है, बच्चों की तरफ से भी है। तो सेकेंडरी स्कूल्स में हमने एक्सपेरिमेंट जरूर किया है, 2-3 दफा किया है, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं जाता जितना हायर सेकेंडरी और अंडरग्रेड में जाता। ओके, जस्ट वांटेड टू नो कि आपके ये एक्सपेरिमेंट इस्लामाबाद में हुए थे या आउटसाइड पाकिस्तान? ये इस्लामाबाद में भी हुए हैं, ये रावलपिंडी में भी हुए हैं, और ये लाहौर में भी हुए हैं। ऑलराइट, तो अभी पंजाब से बाहर मैंने इसको नहीं किया। ओके, और रिजल्ट्स मोर और लेस सेम थे। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, तीनों जगहों पे ऑलमोस्ट सिमिलर challenges भी आते थे और सिमिलर हमें सक्सेस स्टोरीज भी आती थी। Okay, so it might have some connections with the curriculum issues, but I will come to this later on. I further learned about you that during your postdoc, you have worked on the peace pedagogy. Yes. क्या आप ये बताएंगी या एक्सप्लेन करेंगी कि peace pedagogy क्या है और ये आपके critical pedagogy के साथ कैसे कनेक्शन है? अच्छा, इसमें 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि व्हेन यू आर अ रिसर्चर, तो आपकी हर रिसर्च एंड होती है कुछ फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स पे और कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस पे। सो व्हेन आई वाज डूइंग रिसर्च ऑन क्रिटिकल पेडागोजी और मैं उस पे काम कर रही थी, तो ये हमारे लिए एक अनआंसर्ड क्वेश्चन था कि सेकेंडरी स्कूल तक आते आते बच्चों के साथ ऐसा क्या होता है that they cannot take or give opposite opinion peacefully. Okay. ठीक है? And secondary school education is mostly the peak teen age time. ठीक है? ये बच्चे 15, 16, 17 साल में हैं, या hardly कोई 14 होगा, otherwise इस एज में। अब ये एक as a psychologist, I know the dynamics of this age group. And then I was trying to infuse critical pedagogy, और बच्चों की तरफ से भी और टीचर्स की तरफ से भी जिस तरह के रिस्पॉन्सेज आ रहे थे, तो I started analyzing the patterns in elementary education, which is up to grade 8. ठीक है, कि यहाँ क्या हो रहा है और यहाँ से बच्चा क्या लेके आ रहा है सेकेंडरी क्लासरूम। तो that question actually directed me towards analyzing the age group of 3 to 13. तो इसको हम एलिमेंट्री एजुकेशन एज कहते हैं। 3 to 13 इसकी ब्रैकेट होती है। इस 3 to 13 ब्रैकेट में जब मैंने रिसर्च शुरू किया था,
So the most difficult part was adverse childhood experiences. Okay. जो कि सिर्फ घर से नहीं आ रहे, सिर्फ फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली से नहीं आ रहे, सिर्फ नेबरहुड से नहीं आ रहे, बल्कि स्कूल में से भी आ रहे हैं. यानी ऑपरेशन कैसे इंटरनलाइज हो रहा है बच्चों में. ठीक है. अब यूजिंग द वर्ड ऑपरेशन ऑन वन साइड एंड क्रिटिकल पेडागोजी एट सेकेंडरी स्कूल लेवल, the child would not be able to adopt this. ठीक है. क्योंकि by the age of 14 उसने इतना ऑपरेशन इंटरनलाइज कर लिया है कि मुझे रोका जाता है, मुझे मना किया जाता है, मुझे बताया जाता है कि ये अच्छा बच्चा है जो सवाल नहीं करता, ये एक अच्छा बच्चा है जो डिसएग्री नहीं करता, ये एक अच्छा, तो ये अच्छा बच्चा के उसमें हमने इसके साथ क्या किया है. सो एनालाइजिंग दैट, we reached at a point when I proposed this research, and Professor Jason Laker from San Jose State University, he loved the idea कि हाँ 3 to 13 पे काम करते हैं. वो जिस कॉलेज में काम कर रहे हैं उसको वो है एजुकेशन एंड साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग का कॉलेज है. So when I proposed this idea, Professor Dr. Jason Laker at San Jose State University, who is working in the Department of and Counseling, he loved the idea and he said कि हाँ मैं आपके साथ collaborate करूँगा. तो मैं अपने पोस्ट डॉक में सिर्फ इतना सा आइडिया लेके गई थी कि what to do to kind of unpack this and do something with the age group of 3 to 13. वहाँ पे फिर हमने ये पीस पेडागोजी का डिज़ाइन बेसिकली और फ्रेमवर्क तैयार किया. पीस पेडागोजी जो वैसे दुनिया में ये वर्ड मौजूद है और बहुत जगहों पे है, जिस तरह मैंने क्रिटिकल थिंकिंग में 360 डिग्री POV दिया था, यहाँ है ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड प्लेस बेस्ड पीस पेडागोजी. दिस इज माय डिज़ाइन. ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड से मुराद ये है कि पहले ये टीचर को रियलाइजेशन हो कि बच्चा अपने साथ क्या कैरी करके ला रहा है, उसके अगर कोई एडवर्स होम एनवायरनमेंट है या नेबरहुड है या वैसे जिंदगी में कोई ऐसी चीजें चल रही, तो ये है ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड का. सेकंड पार्ट है प्लेस बेस्ड, यानी मेरी थ्योरी ऑफ पीस पेडागोजी में कल्चर मैटर्स अ लॉट. जहाँ ये बच्चा पैदा हुआ है या जहाँ का ये रेजिडेंट है, वहाँ की रियलिटी, ठीक है, और वहाँ की रियलिटी से मुराद होती है वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का लैंडस्केप, वहाँ का कल्चर, इकोनॉमिक कल्चर, सोशल कल्चर, ये तमाम चीज़ें उसकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं. तो फिर आपकी पेडागोजी उससे कनेक्ट करे. यानी एग्जाम्पल मैं एक देती हूँ और उससे समझ आ जाएगा कि किताब में लिखा हुआ है कि ये 5 परिंदे, इनके नाम याद भी करने हैं, स्पेलिंग्स भी याद करने हैं. तो हम इसके साथ ही एक एक्टिविटी डिजाइन करते हैं कि यू नीड टू आइडेंटिफाई 5 बर्ड्स जो आपने देख रखे हैं. तो अगले 3 दिन में आपको जो जो भी परिंदे नजर आए या याद आए कि हाँ मैंने ये देखे, उनके नाम लेके आने हैं. नाउ 40 चिल्ड्रन ब्रिंगिंग birds names in the classroom instead of only those 5 birds names in the book. तो ये कनेक्टिविटी है उसकी रियल लाइफ के साथ. इस तरह से हम ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड और प्लेस बेस्ड पेडागोजी करते हैं, जिससे थ्योरी ये बता रही है थी हमें कि जैसे जैसे बच्चा उन एडवर्स एक्सपीरियंसेस के साथ साथ इस तरह की पीसफुल एलिमेंट्स के साथ मिलता है, जिसमें The most beautiful theory is given by Maria Montessori, जिसको हम सिर्फ एक किंडरगार्टन की मेथोडोलॉजी समझा देते हैं और पढ़ा देते हैं. Actually, she was working in post World War II era, and her claim was कि अगर हमें अगली generations को peaceful करना है, तो हमें इनके साथ ये चीजें अटैच करनी चाहिए. मट्टी, वुड, पानी, ग्रीन एलिमेंट, ये तमाम वो बेसिक लाइफ की एलिमेंट्स हैं जिनके साथ बच्चे का इंटरेक्शन रहना चाहिए. और अगर ये रहेगा तो वो जो एग्रेशन एब्जॉर्ब कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता वो रिड्यूस होगा और वो एक पीसफुल पर्सनालिटी की तरफ जाएगा. Okay. So that's mainly about it. Sorry, थोड़ा लंबा हो गया. No, let me bring some blockages to your theories. हम इसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे इन शेप ऑफ करिकुलम. हमने बहुत ज़्यादा करिकुलम रिफॉर्म्स देखे एंड विद द लास्ट वन सिंगल नेशनल करिकुलम, इसके एक्सेप्टेंस पे, इसके स्ट्रक्चर पे, इसके लिमिटेशंस पे बहुत ज़्यादा डिबेट हुई एंड स्टिल इट इज़ इन शैम्बल. और
हमारा करिकुलम बहुत लेंथी है। जहाँ पे आपने जिन थ्योरीज की बात की वो बजात खुद तो बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है सुनने में और दिखने में भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे, लेकिन जब टीचर्स एक क्लासरूम में दे आर रशिंग टू कवर देयर कोर्सेज, यहाँ पे तो सिंस आई वर्क इन द फील्ड एज वेल, मैंने तो यहाँ तक देखे कि क्रिटिकल थिंकिंग के सवाल तक नहीं होते, ओपन एंड सवाल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है टीचर्स के बेस पे, जहाँ पे आप स्टूडेंट के ये बिहेवियर चेंज लेके आते हैं कि स्टूडेंट आपसे सवाल पूछे, उसमें इतना टाइम और एफर्ट्स लग रहे हैं। लेकिन आपकी जो थ्योरीज है दे गो मोर बियॉन्ड दैट, तो करिकुलम कैसे इस चीज़ की वो इजाज़त दे सकता है? The benefit that I have is कि मेरी PhD करिकुलम में है, ठीक है, तो मेरा जो पहला काम था वो था इंक्लूजन ऑफ वॉइसेस इन करिकुलम। तो आई न्यू कि करिकुलम कहाँ लिमिट करता है, करिकुलम कहाँ स्पेस देता है। अच्छा, उसमें एक वो एलिमेंट रहा जो मैंने उसके एनालिसिस, करिकुलम के एनालिसिस भी किए, मेरे कुछ आर्टिकल्स आपको मिलेंगे एक PhD स्टूडेंट के साथ जिसमें हमने पीस एलिमेंट्स इन करिकुलम आइडेंटिफाई किए, ठीक है। तो पहला काम जो हमारा था वो एक्चुअली करिकुलम बेस्ड था, कि हमें वो चीज़ें जो 2006 के करिकुलम जब रिवाइज हुआ उसके बाद वो एक यूनेस्को का एक फ्रेमवर्क है जिसमें 10 एलिमेंट्स ऑफ पीस बिल्डिंग हैं, उसके एलिमेंट्स कहाँ कहाँ इन्फ्यूज हुए हैं और कैसे अनपैक होंगे, और हमने टीचर्स के साथ भी काम किया। और उसके साथ हैविंग दैट रियलाइजेशन एंड दैट बैकग्राउंड, आई कुड सी कि गलती कहाँ हो रही है। गलती यहाँ हो रही है कि अभी भी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का जो डायलॉग हुआ उसमें हम भी शामिल थे। ये कहना कि हमारा करिकुलम बहुत हैवी है और ये कहना कि हमारा करिकुलम ऑलरेडी बहुत लेंथी है और टीचर्स ख़त्म नहीं कर पाते, इस जुमले के दो हिस्सों के बीच में गैप है। करिकुलम लेंथी है, हैवी है, आई डोंट एग्री। टीचर्स स्ट्रगल टू कंप्लीट इट, आई एग्री। क्यों? वाई टीचर्स स्ट्रगल टू कंप्लीट इट? क्योंकि हमने उनको अकेले अकेले एक कमरे में छोड़ दिया है, right? So our pedagogy is designed in such a manner कि इंग्लिश की मैं टीचर हूँ, मेरी ही जिम्मेदारी है, मैथ के आप टीचर है, आपकी ही जिम्मेदारी है, सोशल स्टडीज का कोई और टीचर है, मैं उसको नहीं जानती। इसमें हुआ क्या कि हम सब अपना अपना भार उठा के खड़े हो गए और हमें लगा कि ये जो 120 समथिंग वर्किंग डेज हैं हमारे स्कूलों में, इसमें मैंने अपना करिकुलम खुद पूरा करवाना है, आपने अपना खुद पूरा करवाना है और अफशा ने अपना खुद नहीं। ये करिकुलम होता है, इसी तरह फ्रेमवर्क्स बनते हैं। हम आज तक टेक्स्ट बुक कल्चर से बाहर नहीं निकल पाए, इसलिए हमने टेक्स्ट बुक भी फिक्स कर दी हर एक की। अब हर एक अपनी टेक्स्ट बुक उठा के उसके सफ़े मुकम्मल करवा रहा है। जिस दुनिया की हम बात करते हैं, जिस दुनिया के हम एग्जांपल्स देते हैं, हम कहते हैं फलां इलाके का करिकुलम बड़ा अच्छा है या स्कूल सिस्टम बड़ा अच्छा है, इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज टीचर विल सम टाइम हैव वन लेसन प्लान, ठीक है। सिमिलरली मैथ एंड ज्योग्राफी टीचर समटाइम्स विल हैव वन लेसन प्लान, ठीक है। ओके, इस्लामियत एंड उर्दू टीचर विल समटाइम्स विल हैव वन लेसन प्लान। इसका मतलब ये हुआ कि हमने टीचर्स को टेक्स्ट बुक में बंद कर दिया, हमने अपने क्लास को भी टेक्स्ट बुक फोकस्ड कर दिया। हमने ये समझा ही नहीं कि ये होता है करिकुलम फ्रेमवर्क, ये होते हैं इसके SLOs और इसमें से बहुत सारे कॉमन होते हैं। तो जब हम पीस पेडागोजी लेके आते हैं या हम सेकेंडरी स्कूल पे क्रिटिकल पेडागोजी लेके आते हैं, तो इस पेडागोजी में 2 या 3 सब्जेक्ट इंटीग्रेट हो रहे होते हैं, तो ये मजीद ऐड नहीं होता, इसमें लेसन प्लान्स रिड्यूस हो जाते हैं। ओके, 3 टीचर्स का लेसन प्लान एक ही दिन एक ही उसमें कवर हो जाएगा। ओके, तो देन दे रियलाइज कि अच्छा, अगर हम पेडागोजीज को बैठ के समझना शुरू करें तो हमारा वर्कलोड एक्चुअली कम हो रहा है, ठीक है, बढ़ नहीं रहा है। तो करिकुलम बेसिक हम वही रहने देते हैं जो कि करिकुलम रिकमेंडेड है, जो बुक्स रिकमेंडेड हैं, लेकिन जब हम एक टर्म की प्लानिंग करवाते हैं टीचर्स के साथ तो हम उसमें बताते हैं उनको कि अच्छा कहाँ कहाँ कॉमन स्पेसेस मिलती हैं, कहाँ कहाँ हम इस तरह की पेडागोजीज डिजाइन करेंगे, एंड ऑन दैट डे यू माइट नॉट हैव 3 डिफरेंट लेसन्स, यू माइट हैव 1 लेसन।
and that would reduce the pressure actually. Okay, I'll just take this opportunity since you have worked on curriculum. मैं सिर्फ आपसे ये समझना चाहता हूँ कि अभी आपने डायलॉग के भी आपने अटेंड किया है. जी. I have recently experienced some of lessons and some of the classrooms. आप मुझे ये बताएंगी कि एक लेसन जैसे आपने कहा कि हम उसके पेडागोजीज को मिक्स कर सकते हैं, हम उसके कोई ऐसा पैटर्न डिजाइन कर सकते हैं कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में से हम कोई भी उसको ऐसे मिलाएं कॉमन थीम को कॉमन लेसन प्लान उसमें से बना सके. साइंस में हम सोलर सिस्टम पढ़ते हैं, उसी ही क्लास में उर्दू है निज़ाम शमसी. जी बिल्कुल. सो अगर हम उसको इस नजरिए से देखें तो आपको काफी ऐसे लोग आपकी श्रिंक डाउन हो जाएंगे. हाँ जी, जब हम बैठते हैं ना टर्म प्लानिंग करवाते हैं ना टीचर से और उसको हम इंटीग्रेटेड प्लानिंग कहते हैं, तो एक्चुअली यही होता है. ओके, ठीक है. उसमें हम सिर्फ ये करते हैं कि अच्छा उर्दू वाला उर्दू की एक्टिविटी जरूर रखें. बिल्कुल. ठीक है. साइंस वाला साइंस के कॉन्सेप्ट्स को जरूर बिल्ड कर रहा हो. और इंटरेस्टिंगली जो टॉपिक आपने उठाया इसमें ही हम मैथमेटिक्स भी ले आते हैं. राइट. बिल्कुल. ठीक है. तो ये 3 टीचर्स जिस दिन मिलके एक लेसन प्लान करते हैं, देन दे रियलाइज कि अच्छा ऐसे लोग सबके पूरे हुए हैं. राइट. ठीक है. लेसन एक था. राइट. तो आप इनके ऊपर कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी हैं, आप टीचर्स को ट्रेन कर रहे होते हैं, एंड व्हाट आर दोस ट्रेनिंग मॉड्यूल्स? जो मेरा पीस पेडागोजी का पूरा एक स्ट्रक्चर है, उसके 3 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं. 3 इसलिए हैं कि एक चीज जिसका जिक्र नहीं हुआ वो अच्छी बात है इसमें हो जाएगा कि उसमें पहला है जिसमें टीचर्स अपने इनर पीस पे काम करते हैं. ए एडल्ट ग्रुप इसी सोसाइटी में जो ये सारे ट्रॉमास लेके बड़ा हो गया, राइट, उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बच्चों के ट्रॉमा को भी रियलाइज करें और ये जो सारे प्रेशर्स हैं आसपास इनको भी रिजॉल्व करें और पीस बिल्डिंग भी करें. तो जो फर्स्ट मॉड्यूल है ट्रेनिंग का वो है इनर पीस, जिसमें हम टीचर को ट्रेनिंग ये देते हैं कि हाउ वुड फर्स्ट ऑफ ऑल दे लर्न द सोशल इमोशनल स्किल्स, सेल्फ केयर, सेल्फ रेगुलेशन. तो सबसे पहला मॉड्यूल वो है. सेकेंड मॉड्यूल है पीस बिल्डिंग अराउंड यू, जिसमें ये एडल्ट ग्रुप अगेन द टीचर्स एंड हेड टीचर्स. अच्छा, इन दोनों मॉड्यूल्स में जो हमने शर्त रखी हुई है, जो हमने एक्सपेरिमेंट के दौरान भी रखी कि हेड टीचर जरूर होगा. ओके. टीचर्स अकेले नहीं होंगे इस ट्रेनिंग में. ठीक है. तो हेड टीचर्स वर्क कम विद देम एंड पार्टिसिपेट विद देम. सेकेंड स्टेज पे इन द सेकेंड मॉड्यूल वी हैव द ट्रेनिंग ऑफ पीस बिल्डिंग अराउंड यू. यानी आप अडल्ट हैं, आपके आसपास और अडल्ट ग्रुप्स हैं, आपकी फैमिली है, आपका सोशल सर्कल है और आपका स्कूल के अंदर एडल्ट ग्रुप्स हैं, राइट. इनके साथ पीस बिल्डिंग कैसे होगी? तो सेकेंड मॉड्यूल गिव्स देम द होल ट्रेनिंग फॉर पीस बिल्डिंग अराउंड यू, जिसमें जो यूनिवर्सल पीस वैल्यूज हैं, एथिक्स हैं, वो सब चीजें. इन द थर्ड मॉड्यूल वी एक्चुअली वर्क ऑन पीस पेडागोजी, जिसमें ये जो इंटीग्रेटेड करिकुलम प्लानिंग है, मारिया मॉन्टेसरी की थ्योरी है और फिर डेवीज आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक क्लासरूम. ठीक है. फिर हम यहाँ पहुंचते हैं और तीसरे लेवल के ऊपर फिर वो इस तरह की लेसन प्लान्स और इंटीग्रेटेड प्लान्स बनाने शुरू करते हैं. हेड टीचर्स इन दिस थर्ड मॉड्यूल वर्क मेनली ऑन स्कूल पॉलिसीज. एंटी बुलिंग पॉलिसी क्या होगी, हरासमेंट पॉलिसी क्या होगी, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट की पॉलिसी क्या होगी, टीचर्स वेलबींग की पॉलिसी क्या होगी और स्टूडेंट वेलबींग की पॉलिसी क्या होगी. लास्ट इज स्कूल एंड कम्युनिटी रिलेशन, जिसमें पेरेंट इन्वॉल्वमेंट है और सब है. वो हेड टीचर्स का काम है, वो उस पे काम करते हैं और टीचर्स इंटीग्रेटेड लेसन प्लानिंग पे काम करते हैं. एंड बिकॉज दे आर वर्किंग टुगेदर तो हेड टीचर को पता होता है कि अच्छा फिर ये ऐसे इम्प्लीमेंट होगा और हमारे टाइम टेबल्स भी ऐसे चेंज होंगे. All right. One more aspect on training. You have worked on the teachers' belief systems as well. और ये I think पंजाब रीडिंग प्रोग्राम के अंदर हुआ था. ये पाकिस्तान रीडिंग प्रोग्राम PRP के अंदर हुआ था. How do you see this thing कि टीचर के जो अपने beliefs होते हैं towards the classrooms, towards their students and towards their own duty, कि वो ड्यूटी क्या दे रहे हैं. कहने को तो बहुत बड़ी बात है बच्चों को पढ़ाना, उनका मुस्तकबिल सुधारना, लेकिन
कुछ how do they see it? how do they say it? कुछ के नज़रिए में सिर्फ वो नौकरी होती है, ठीक है. So जब ये trainings आप करवाते हैं या even you expose them towards these theories, तो उनके belief system कैसे change हो जाते हैं, और have you experienced some change or you are just struggling with that? जब मैं PRP के उस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी तो उसकी अच्छी बात ये थी कि आई वाज एबल टू ट्रैवल अ लॉट. तो मैं पाकिस्तान के तमाम सूबों में, बलूचिस्तान भी और KP भी और सिंध भी, बल्कि पंजाब का उसमें कम था PRP में. तो हम ट्रैवल करते थे और मुख्तलिफ इलाकों के टीचर्स से बातचीत का मौका मिलता था. इट वॉज अ प्योरली क्वालिटेटिव रिसर्च जिसमें जब नैरेटिव्स आते हैं ना लोगों के और स्टोरीज आती हैं तो पता चलता है कि ये बिलीफ बना कैसे है. आज अगर एक टीचर अपनी जॉब को सिर्फ जॉब समझ रहा है, उसके बियॉन्ड उसकी कोई उसके साथ एफिलिएशन नहीं है, कोई पैशन नहीं है, तो ऐसा क्यों है? वो उसकी बैकग्राउंड क्या थी, वो कैसे टीचिंग में आ गए? और तो इट डिपेंड्स अपॉन द होल प्रोफाइल कि वो कैसे बिल्ड हुआ. जो चीज़ मुझे सीखने को मिली वो दो बातें थी. एक तो ये कि completely non-judgmental analysis of what teachers or anyone believes about their own work. Number one. Number two, इसी तरह से non-judgmental होते हुए ये समझना कि पाकिस्तानी कल्चर में लर्निंग, लर्नर और लर्निंग एनवायरनमेंट के बारे में लोगों के क्या बिलीव्स हैं. इनको समझने का फायदा मुझे ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट में किसी के बिलीफ्स बदल दूंगी. मैं करिकुलम से होते होते टीचर्स ट्रेनिंग करते कराते सारे एक्सपीरियंस होते, जब पेडागोजीज पे पहुंची तो मुझे जो आज की रियलाइजेशन है, आगे आई एम स्टिल लर्निंग, वो ये है कि इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रैक्टिसेस एंड मेक इट अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, ठीक है, तो यहाँ क्रिटिकल थ्योरी की बजाय रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस ज्यादा काम आती है. टीचर ने आज के दिन में जो किया है उसी पे रिफ्लेक्ट करें, फिर इस वीक में जो किया है उसी पे रिफ्लेक्ट करें. तो जैसे जैसे रिफ्लेक्शंस आने शुरू होते हैं, यानी जब वो मिरर लेके बैठते हैं तो बिलीफ चेंज होना शुरू होता है. मेरी ट्रेनिंग के दौरान बिलीफ नहीं चेंज होता, बिलीफ चैलेंज होता है. ट्रेनिंग्स में मोस्टली जब हम ये कर रहे होते हैं, करवा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आई से इन द स्पीच पेडागोजी आई से कि बच्चों को ये रियलाइज करवाना कि इवन अ कॉकरोच इज नॉट टू बी किल्ड, ठीक है, इट इज टू बी रिपेल्ड. आपसे दूर हो जाए, आपको नुकसान ना पहुंचाए, आपकी चीजों को नुकसान ना. तो यहाँ पर कुछ टीचर्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग भी हमें चैलेंज करते हैं और हमें कहते हैं कि नहीं, ये तो आप गलत कह रहे हैं, वो उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है, ये हो सकता है. एंड वी सरेंडर एंड वी से बिल्कुल ठीक है, ये है रिवर्स अजम्पशन, ये मेरी अजम्पशन थी, ये आपकी रिवर्स अजम्पशन है, लेट्स हैव एविडेंस ऑन दिस, लेट्स हैव दिस. हो सकता है 3 दिन की ट्रेनिंग में, 5 दिन की ट्रेनिंग में वो बिल्कुल वहीं खड़े रहें. ओके. उसके बाद हम कोई 3 महीने तक इनसे रिफ्लेक्शंस लेते रहते हैं. एंड इंटरेस्टिंगली जो आपने कहा अभी तक की कोई, तो हमें मजा ये आता है कि कोई 1.5-2 महीने के बाद जाके किसी एक रिफ्लेक्शन में उसने लिखा होता है कि मुझे आज समझ आया कि आप उस दिन क्या कह रही थी. ठीक है. देन आई रियलाइज्ड कि हाँ, अब बिलीफ शेक हुआ है, उस दिन सिर्फ चैलेंज हुआ था, उस दिन चैलेंज. तो ये ओवरनाइट चेंज का काम नहीं है, राइट. लेकिन मुझे रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करते करते, मेरा जो पहला कोर्स पाकिस्तान में ऑफर हुआ PhD के बाद वो था क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस. खाली क्रिटिकल थिंकिंग का फायदा नहीं जब तक रिफ्लेक्शन नहीं होगा. तो टीचर्स को आदत ये डालनी है कि वो रिफ्लेक्ट करते रहें कि मैंने आज जो किया है क्या मैं उससे खुद सहमत हूँ, ठीक है, और जो नॉलेज मैं ले चुका हूँ. मेरी जो एडवाइजर थी PhD की, लिन फेंडलर, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल था व्हेन शी सॉ कि मैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस को इसके साथ निट कर रही हूँ. तो दैट वाज रिफ्लेक्शन इन द हॉल ऑफ मिरर्स. इतना खूबसूरत मेटाफर था ये. अगर आप अकेले ही बैठ के रिफ्लेक्ट करते रहेंगे तो आप अपनी ही बातों को सपोर्ट करते रहेंगे. सो यू आर रिफ्लेक्टिंग इन द हॉल ऑफ मिरर्स. तो रिफ्लेक्शन की भी लेवल्स हैं.
आपने अकेले क्या करना है, फिर कौन हो आपका क्रिटिकल फ्रेंड, और उसका नाम लिटरेचर में क्रिटिकल फ्रेंड ही है, ठीक है। आप ही के स्कूल में कोई हो सकता है, वो आपके सोशल सर्कल में कोई। फिर आप किस कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस का हिस्सा बने, जहां जाके आप अपनी क्लासरूम स्टोरीज शेयर करें और आपको लोगों से भी रिफ्लेक्शन मिलना शुरू हो। तो इस पूरे सर्कल में, इस पूरे स्पाइरल में जब तक टीचर नहीं डलता, तो वी कैन नॉट सिंपली चेंज द बिलीव्स। Right. Exactly. You're working on behavioral change, so that is definitely a very difficult thing. आपने देखा होगा, मैंने अभी तक आपके साथ कोई statistics पे बात नहीं की, मैंने आपके साथ कोई चिल्ड्रन आफ्टर स्कूल या लर्निंग पॉवर्टी की कोई स्टैटिस्टिक नहीं है, बिकॉज हम डिटेल्स में जाएंगे, we will go to very different directions. हाँ, बिल्कुल ठीक। Staying on the behavior change, मेरा आपसे सवाल है कि आप इसको इंड्यूस करने के लिए पाथवे कौन सा लेती हैं? एक पाथवे है अवेयरनेस, एक्सपोजिंग टीचर्स, एक्सपोजिंग स्टूडेंट्स टू दिस, ट्रेनिंग देम। दूसरा पाथवे है इसको मनवाना, इम्प्लीमेंट करवाना। तो जो कि हमारे उस टीचर्स के ना सिर्फ बर्डन बनता है, बल्कि करिकुलम के ऊपर भी थोड़ा बहुत चेंजेस आना शुरू हो जाती है। सो व्हाट इज योर पाथवे बेसिक फॉर दैट? मैं जब क्रिटिकल थ्योरी और पीस की थ्योरीज को पढ़ रही हूँ, सीख रही हूँ, समझ रही हूँ, तो फिर मुझे सबसे पहले खुद अडॉप्ट करनी है। राइट। अगर मैं पावर पाथवेज से आऊंगी तो मैं अपनी ही थ्योरीज को नेगेट कर रही हूँ, ठीक है। जो मेरी पीस एजुकेशन थ्रू पीस पेडागोजी पे बुक आई और जो तीनों मॉड्यूल्स हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वो बात ही इस पे करते हैं कि इस मुआशरे के साथ हुआ क्या। पहले ये किंगडम्स थी, फिर ये कॉलोनियलिज्म के हवाले हो गए, और फिर ये डिक्टेटरशिप्स से गुजरे। ये तीन बड़े वर्ड्स हैं जिन्होंने हमें पावर स्ट्रक्चर्स इतने सॉलिड बना दिए हैं, ठीक है। और एक शख्स जो क्लेम करता है और जो झंडा उठा के खड़ा होता है क्रिटिकल पेडागोजी का और पीस पेडागोजी का, अगर वो भी यही पाथवेज इख्तियार करेगा कि अच्छा मैं फेडरल डायरेक्टरेट को मना लूंगी तो ये हो जाएगा, नहीं, मुझे फेडरल डायरेक्टरेट को नहीं बनाना, मुझे मिनिस्ट्री को भी नहीं बनाना, मुझे किसी पावर स्ट्रक्चर को नहीं बनाना। अगर आपको बिलीफ्स पे काम करना है, अगर आपको बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस पे काम करते हैं, तो प्रैक्टिशनर के साथ काम करना है। Why first module is about the teacher. Right. सबसे पहले मैं उसके साथ जाके खड़ी होती हूँ और हम रियलाइज करते हैं कि तुम कितनी मुश्किल में हो, बिल्कुल, तुम्हारी जिंदगी हमने कितनी परेशान कौन रखी हुई है। तुम्हारे ऊपर बच्चे को पढ़ाने का भी बोझ हमने डाल रखा है, तुम्हारे ऊपर हमने बच्चे की अटेंडेंस भी मेंटेन करने का बोझ डाल रखा है, और तो और एनरोलमेंट भी तुम लेके आओ, ड्रॉप आउट भी तुमने नहीं होने देना। ये सारे सब की सब चीजें जाके टीचर के ऊपर खड़ी। तो मुझे टीचर के साथ खड़ा होके इस चेंज का हिस्सा बनना है, ना कि मुझे ऊपर से कोई ऑर्डर्स के साथ लाके उन पे कुछ इम्पोज करना है। They all design their own pedagogy, ठीक है। मैं उनको एक फ्रेमवर्क देती हूँ कि जी ये होता है एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, ये होती है इसकी रियलाइजेशन, ये है एम्पैथी, ये है कंपैशन। ऐसे आपने रेजिलियंस बिल्ड करनी है। रेजिलियंस बिल्ड करते करते साथ साथ आपने बच्चे को जगह दे देनी है कि वो सोचने समझने और इंडिपेंडेंट थिंकिंग की तरफ चला जाए इसमें से। और आपने अपना ख्याल कैसे रखना है, right. इस सारे एक हफ्ते के हम उनको बकायदा रूटीन्स बताते हैं कि आपने अपने लिए मी टाइम कब निकालना है, आपने अपनी सेल्फ जो होती है ना ग्रूमिंग, उस पे कब काम करना है, आपने हंसना है, आपने बोलना है, आपने गाना है। इवन सम ऑफ द टीचर्स वी डांस विद देम, ठीक है। तो हम उस पावर स्ट्रक्चर के जरिए नहीं आना चाहते, हम कहीं पे भी लफ्ज इम्पोज ना आए, कहीं पे भी लफ्ज top down approach nahi aana chahiye. So my approach is maybe bottom up. So you are hopeful about that? I am. All right. My last question for me. If you are in some position where you can bring a very critical change inside curriculum, like just in 1 or 2 days, what would be that change? I would say कि जहाँ जहाँ लफ्ज टेक्स्ट बुक आ रहा है,
उसको बदल के लर्निंग मटेरियल्स करते हैं और लर्निंग एक्सपीरियंसेस करते Okay. And what do you mean by that? हैं. टेक्स्ट बुक टू मी सो फार जो मेरी रियलाइजेशन है वाज अ टूल इन कॉलोनियलिज्म, जिसमें मुझे बंदिश लगानी थी कि इसके बियॉन्ड नहीं सोचना, इसके बियॉन्ड नहीं बोलना, इसके बियॉन्ड नहीं पढ़ना, इसके बियॉन्ड नहीं लिखना. तो टेक्स्ट बुक उसका एक टूल है. Right. आज भी जब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का डायलॉग हुआ पिछले महीने, तो उसकी फाइनल डिस्कशन में मैंने हैंड रेज करके एक ही पॉइंट मेक किया था कि प्लीज टेक्स्ट बुक के फिनोमिना से बाहर आ जाएं. दिस वाज अ कॉलोनियल टूल, अ टूल ऑफ इम्पोजिंग पावर टू लिमिट यू. आज के दौर में होते हैं लर्निंग मटेरियल्स एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस. Right. आपके टीचर को जब SLO मिले तो वो ये ना देखे कि अच्छा पेज नंबर फलाने पे ये लिखा हुआ है. नहीं नहीं नहीं, वो जो पेज नंबर फलां पे ये लिखा हुआ है वो तो सिर्फ एक लर्निंग मटेरियल है. Right. इसके अलावा और कौन कौन से लर्निंग मटेरियल्स यूज हो सकते हैं टू गिव अ रिचर लर्निंग एक्सपीरियंस टू द चाइल्ड. All right. मैं ये मेजर चेंज करूंगी. All right. With that, I thank you very much, Dr. Huma, and I wish you best of luck for your future endeavors. Thank you so much. Thank Thank you. And dear listeners, thank you so much for listening. And if you like this episode, please like, share and subscribe. And आपने डॉक्टर साहबा के इनिशिएटिव्स के बारे में सुना. अगर आप इनके ऊपर कोई क्वेश्चंस है, कोई सजेशंस है, please write it to us. Thank you.